This is Ranjan. Welcomes you on our online channel Science Study Center and Young Minds Academy. So students, today this is the first class for CBSE board aspirants, and in maths we have to start maths, and in maths students we have to study the chapter polynomials. Okay, and I think all of you are familiar with this chapter, as in previous class, in class 9th, this chapter was also included. Okay, so students, in the first class we have to revise the basic concepts which we had also studied in class 9th, and also to start about class 10th. Okay, so let us start and revise. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, एक एक बात रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइजेस 10th के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे. देन वी विल मूव फॉर NTSC एंड ओलंपियाड्स क्वेश्चन. ओके, स्टेप बाय स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन, देन एक्यूरेसी लानी है, उसके बाद हम लोग हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, पॉलिनोमियल is a synthesis of two words. Poly means many and nomial means terms. Nomial means terms. Okay, so we can say that an expression involving many terms, is called polynomial. अब स्टूडेंट्स, और पॉलिनोमियल को डिस्कस करने से पहले, first of all let us make the difference clear between variables and constants. So this is very simple. Variables are also called, students, literals. They are also called literals. Variables means they are not fixed. Okay, they depend upon constants. Okay students, एंड एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स जो अल्फाबेट्स होते हैं, ऑल अल्फाबेट्स, ओके, सम लैटिन वर्ड्स एटसेट्रा, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स. स्टूडेंट, सपोज ए की वैल्यू 2 है एंड बी इज 3, इट मीन्स a प्लस b इज 5. इफ a इज 7 and b is 8, now a plus b is 15. Students, here is also a plus b, here is also, but their values are different. Why? This is very simple. They depend upon constants, they depend upon numbers. Variables vary, okay, इनकी value change होती रहेगी. Okay, and constants, they are fixed, इनकी value fixed होती है. students, they are fixed, इनकी value fixed होगी. all numbers, जो भी नंबर्स होंगे, दे आर कॉन्स्टेंट्स. ओके, सो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट सभी को क्लियर है. वेरिएबल्स वैरी करेंगे वैल्यू टू वैल्यू, दे आर नॉट फिक्स्ड, व्हाइल कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड. स्टूडेंट्स, ओके, नाउ और कुछ बेसिक बातें. टर्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप लोग टर्म सेलेक्ट करना सीख गए थे. ठीक है, टोटल प्लस एंड माइनस, सिर्फ आपको इतना काम करना है, टोटल प्लस और माइनस साइन काउंट कर लो, you will get exactly the terms in given expression. Okay, suppose this is minus 3x square yz. कितना टर्म होगा बच्चों? सिर्फ एक साइन है ना, प्लस और माइनस साइन दोनों को काउंट करना है. here only one sign, so here is one term. ax square plus bx plus c, here 3 terms. okay, देखो स्टूडेंट्स, एक साइन यहां पर है, एक यहां पर है, और इसका भी साइन प्लस है, तो टोटल आप साइन काउंट कर लोगे तो टर्म पता चल जाएगा. ठीक है, ये भी क्लियर होगा सभी को. देन स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म, बिल्कुल बेसिक से एक एक बात सीखना है. द टर्म हैविंग नो वेरिएबल, the term having no variables are called constant terms. Okay, the terms having no variables
is called constant term. Okay, singular है. Like in the expression 3x square plus 5x minus 4. So students, constant term क्या है? What is constant term? जिसमें कोई वेरिएबल ना होगा. So this is the constant term with sign लिखते हैं स्टूडेंट्स. This is -4. x square minus 4. What is constant term? +4 कर लेते हैं. So constant term is +4. Okay. Now you are able to find out the term and also what do you mean by constant term. Now one more important thing, coefficients. Coefficients. Okay students. Now coefficients का मतलब बच्चों ध्यान देना है. Suppose -3x square yz plus 17 is given. Okay, and you have to find out coefficient of yz, coefficient of x square, coefficient of 17, coefficient of -3x square, coefficient of -3x square yz. Okay, so listen very carefully. These basics are very very important. Now students, coefficients find करना है. First step, select the term to which the coefficient is to be found. Okay, you have to select the term. आपको टर्म सेलेक्ट करना है जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है. सो नाउ इट इज वेरी क्लियर. टर्म कैसे सेलेक्ट करोगे? साइन से. yz किस टर्म में है? दिस इज द टर्म इन विच yz एग्जिस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, टर्म सेलेक्ट कर लिया. अब जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उस टर्म में उसको छोड़ के बाकी जो बचा सब लिख दो. सो yz को आप छोड़ दोगे, क्या बचा? -3x स्क्वायर. ओके, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? इसी टर्म में है. x स्क्वायर को हटा दो, -3yz. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 17? स्टूडेंट्स, नाउ 17 इज इन दिस टर्म, अलग टर्म है. तो 17 का कोफिशिएंट 0 नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, 17 इंटू 1 लिखेंगे. सो कोफिशिएंट ऑफ 17 इज 1. 1 is the coefficient of every number, every variable and every sign. Okay, now coefficient of -3x square, इसको आप अवॉइड करोगे, इसको क्विट करोगे, yz हो जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ -3x square yz पूरा का पूरा, तो 1 बचेगा बच्चों, 17 नहीं लिखना है. कोफिशिएंट जब भी फाइंड करना है आपको उस टर्म को सेलेक्ट करना है. जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है उसको छोड़कर उस टर्म में जो भी नंबर होगा, जो भी साइन होगा, जो भी वेरिएबल होगा, सब आपको लिख देना है. नाउ इट इज क्लियर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल कांस्टेंट, ये सारी बातें क्लियर हो गई. नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? So this is very easy. Expressions involving variables and constants separated by plus or minus sign, forms algebraic expressions. Okay students, if given expression is algebraic, it means variables होंगे, constants होंगे, plus या minus sign होगा. Like x square plus 5x minus 7. Okay, x plus 1 by x, x power minus 2 plus 8 -7x एटसेट्रा. ओके, किसी भी तरह का वेरिएबल हो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो, प्लस और माइनस साइन हो, इट विल फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस.
It is okay? I hope this is clear to all of you. Okay. Now, till here we have to start the topic, that is बिल्कुल बेसिक से पढ़ना था बच्चों. Now we have to start polynomials. Now we have to start polynomials. So what are polynomials? So we can say that expressions like a0, a1x, a2x square dash dash an x power n is called polynomials, is called polynomial in variable x of n degree and n terms. Okay, where a0, a1, a2 dash dash an are real numbers, and I hope all of you are familiar with real numbers. Any number which exists sorry, any number which exists called real numbers. The number which can be represented on number line are called real numbers. Okay, so students आप ध्यान से देखो, a0, a1, a2, an ये सब क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए, रियल नंबर है. और x क्या है? वेरिएबल है, प्लस और माइनस. So similarly we can say variables and constants when written in a sequence separated by plus or minus sign, polynomials are formed. Okay, तो इसमें भी variables constant होंगे और प्लस माइनस से सेपरेट होगा. Like x square minus 4, y cube minus 27, p square minus 5p plus 6, etc. Okay, this polynomial is in x variable, this is in y variable, and this is in p variable. Now students, you are thinking that algebraic expression भी तो यही था, उसमें भी वेरिएबल थे, कांस्टेंट थे, प्लस माइनस साइन से सेपरेटेड था. पॉलिनोमियल्स भी वही है, बट याद रखना है स्टूडेंट्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं. इफ पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव, फ्रैक्शनल और इन रूट, negative, fractional or in root, then this is not polynomial. This is not polynomial. What is then this? This can be algebraic expression, but this is not polynomial. Condition क्या है? Power of variable is negative, like x power minus 3 plus 8. Fractional, y power 1 by 2 plus 4, root y power under root 2x plus 16. They are not polynomials, but they are algebraic expressions. Okay, so we can say याद रखना है स्टूडेंट्स, पावर ऑफ वेरिएबल नेगेटिव होगा, फ्रैक्शनल होगा, रूट में होगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, algebraic expressions होगा. ठीक, याद रखना है हमेशा. We can say all polynomials are algebraic expressions. All polynomials are algebraic expressions, but all algebraic expressions are not polynomial. This is algebraic expression, but they are not considered polynomial. Okay, और polynomial जो होंगे वो algebraic expressions होगा. So first thing is this, and the second exception is if the variable is in root or in denominator, then this is not polynomial, then it is not considered as a polynomial. Okay students, क्या है यहाँ पे? वेरिएबल खुद रूट में हो जाए, लाइक अंडर रूट 3x plus 7, 3 under root x plus 7. This is polynomial. Why?
स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल रूट में नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो सकता है बट वेरिएबल्स रूट में नहीं होना चाहिए, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। और डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। सो ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकला, पावर ऑफ वेरिएबल ना नेगेटिव हो, ना फ्रैक्शनल हो और ना तो रूट में हो, एंड वेरिएबल इटसेल्फ इज इन नेवर इन रूट और इन डिनोमिनेटर। बाकी जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी अ पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ degree of polynomial, degree of polynomial. So students, it is the maximum power of variable, it is the maximum power of variable in given polynomial, in given polynomial। डिग्री फाइंड करना है स्टूडेंट्स, कोई पॉलिनोमियल दिया है एंड यू हैव टू फाइंड इट्स डिग्री, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डिग्री, लाइक 12x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 7, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 3 है, सो डिग्री इज 3। p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, मैक्सिमम पावर 2 है, सो दिस इज 2। 126x मैक्सिमम पावर 1 है, सो डिग्री इज 1। 123 स्टूडेंट्स, यहां पर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का पावर देखना है, तो वेरिएबल है नहीं, सो डिग्री इज 0। ओके, इसको हम लोग 123 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, सो वेरिएबल की डिग्री क्या है, 0 है। ओके, so the maximum power of variable, the maximum power of variable in given polynomial is called degree of polynomial। clear है बच्चों? if you want please click the screenshot of this picture। now डिग्री हो गया, ये सब बातें आप लोग सीखे हो। अब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करोगे, इफ वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल देन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस में तो आप लोगों ने बहुत ही जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, अगर स्टूडेंट्स 1 टर्म हो then this is called monomial, and if there is 2 term then this is called binomial, and students if there is 3 terms then this is called trinomial, then this is called trinomial, and if 4 or more terms then this is called polynomials। okay, तो टर्म के बेसिस पे क्लियर है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सो याद रखना है स्टूडेंट्स, डिग्री और टाइप, डिग्री और टाइप। ओके, डिग्री इज 0 देन दिस इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, एंड इफ डिग्री इज 1 then this is called linear polynomial, degree is 2 then this is called quadratic polynomial, degree is 3 then this is called cubic polynomial, and students if degree is 4 then this is called biquadratic polynomial। okay, so polynomials can be classified on the basis of degree and on the basis of terms। okay, और डिग्री के बेसिस पे हमने ये क्लासिफाई किया। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर हो गया? सून वी विल स्टार्ट लाइव क्लासेस। ओके, यू विल गेट अनाउंसमेंट ऑन दिस चैनल, एंड इन द लाइव क्लासेस you can make your doubts clearly, crystal clearly,
through our live chat. Okay, so students, soon we will start our live classes. Now basis of degree, basis of terms हो गया. Okay, अब स्टूडेंट्स डिग्री पे थोड़ा ध्यान से समझते हैं. सो डिग्री और टाइप, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एग्जाम्पल्स. ओके, सो डिग्री इज 0, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. अभी आप लोगों ने देखा जीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो पॉलिनोमियल लाइक 10, 23 etc. okay, now if degree is 1 then this is called linear polynomial. okay, जनरल फॉर्म तो x वेरिएबल में लिखते हैं स्टूडेंट्स. जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म भी पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उसको वेरिएबल्स के पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. इट इज अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल एंड जनरल फॉर्म मिल जाता है. तो लीनियर पॉलिनोमियल में स्टूडेंट मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, लाइक 2p + 3 लीनियर पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है वेरिएबल की. सिंपली 2p लिख दे, दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, तो यहां हमने p वेरिएबल यूज किया है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, so this is ax square plus bx plus c. okay, example 2x square minus 5x plus 6, x square minus 4, okay, x square etc. देखो स्टूडेंट्स 3 एग्जाम्पल्स है, सब में डिग्री क्या है 2 है, सब में डिग्री क्या है 2 है. सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, मैक्सिमम 4 टर्म्स. x क्यूब माइनस 8 लिख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 लिख सकते हैं, एटसेट्रा. ओके, फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो जनरल फॉर्म पावर 4 होगा, पावर 3 होगा, पावर 2 होगा, पावर 1 होगा और फिर कांस्टेंट टर्म, x पावर 4 माइनस 16, x पावर 4 एटसेट्रा. ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स a, b, c, d and e आर रियल नंबर्स, दे आर नॉट वेरिएबल्स. इसको हमने रियल नंबर सपोज किया है, इनके प्लेस पर कोई भी नंबर हो सकते हैं. ठीक, तो क्लियर है. क्वाड्रेटिक है, 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट इन ईच केस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2. ओके स्टूडेंट्स, सो क्लियर है. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, ये जनरली एनटीएससी में पूछा जाता है. फॉर ax स्क्वायर प्लस bx plus c to be quadratic polynomial, to be quadratic polynomial. ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स. a should not equal to 0, b should not equal to 0, c should not equal to 0 and option d is none of these. ओके, क्या होगा अगर आपको पता चल गया होगा, पिछली बात ध्यान से सुनी होगी, आसानी से फाइंड कर लोगे. देखो स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर हम लोग b की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वाला पूरा टर्म 0 होगा. बचा क्या, ax स्क्वायर प्लस c. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक. भाई पावर 2 है मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक है. सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमने कांस्टेंट टर्म 0 लिख दिया, तो ये पूरा 0. सो नाउ ax स्क्वायर प्लस bx, दिस इज क्वाड्रेटिक टिल नाउ. बट स्टूडेंट्स, इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a 0, तो ये पूरा 0, दिस इज bx प्लस c.
Now this is not quadratic. Okay, so option is correct, a is not equal to 0. Okay, तो क्या कंक्लूजन निकला? कोई भी पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखे, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखे, तो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल अपनी डिग्री को लूज कर देगा, हमेशा उससे कम वाली डिग्री में आ जाएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, याद रखना है बच्चों. प्लीज नोट दिस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, याद रखना है P ऑफ x लिखा हो, G ऑफ x लिखा हो, जनरली इस तरह के टर्म्स मिलेंगे. तो P ऑफ x मतलब स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. ओके, तो जो भी पॉलिनोमियल होगा x वेरिएबल में लिखा होगा. P ऑफ y होगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, P ऑफ z होगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z. ओके, सिमिलरली G है तो स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ वेरिएबल x प्रोनाउंशिएट करेंगे. ग्राफ ऑफ वेरिएबल x, तो ये भी पूरा x वेरिएबल में होगा. और f ऑफ x है तो वी विल रिप्रेजेंट इट एज फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x. ओके, सो यहां तक क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक बातें हो गई, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो जितनी भी चीजें पढ़ी सब में जरूरत पड़ेगी. सब में आपको टर्म पहचानना होगा, कांस्टेंट टर्म पहचानना होगा, डिग्री समझनी होगी. ठीक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. एक और इसके बाद छोटा सा लेक्चर मिलेगा स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे. देन वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. ओके, सो स्टूडेंट्स सेकेंड लेक्चर में बेसिक बातें, उसके बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.